Hello, welcome back to Physics class 11. Today is lecture number 4 for the chapter 3, motion in a plane. Yesterday we have discussed some graph of the velocity time, speed time, and before that previous lecture we have discussed about the position time graph, distance time graph, displacement time graph and etc. तो अभी पूरा ग्राफ जो भी मोशन ऑफ अ बॉडी है along the straight line rectilinear motion of body we can express or we can study with the help of graph. Okay, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आशा करता हूँ. ओके, अभी आज है ना थोड़ा सा अभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते दो तीन, एंड देन उसके बाद जो आइजैक न्यूटन ने जो व्हाट इक्वेशन इज डिराइव्ड, थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन, वो हम डिराइव करने वाले हैं एंड वॉट एवर द न्यूमेरिकल बेस ऑन दैट. ओके, तो आज हमारा चौथा लेक्चर है. सबको संडे की जो टेस्ट थी, पहली टेस्ट CET टेस्ट बहुत अच्छी गई, एवरीवन गॉट अ वेरी गुड मार्क्स. जिसको भी कम मार्क्स आए तो नॉट टू डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है. तो और अच्छा मेहनत करोगे, अच्छा प्रैक्टिस करोगे. फिजिक्स में क्या है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और स्पीड में करना है. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है आपके क्वेश्चन कुछ छूट गए होंगे फिजिक्स की, इसलिए मार्क्स कम आए होंगे, तो अगली बार आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने का. ओके स्टूडेंट, लेट्स लुक एट दी ग्राफ ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of motion of a body. ओके, तो हम देखेंगे अभी जो टेक्स्ट बुक में नहीं है ग्राफ, लेकिन जस्ट फॉर CET पर्पस वो आपको मालूम होना चाहिए. तो पहला ग्राफ है, दिस इज एक्सेलरेशन along y axis, here time along x axis. We always take the time x axis along x axis because time is independent variable, whereas acceleration is dependent variable, right? When we set the time, how much the vehicle or body get accelerate, so we have to take acceleration physical quantity along the y axis. Suppose if the straight line parallel to time axis, what this indicate? There is no change in velocity acceleration. Suppose if I am taking time 1, this is 2, this is 3, 4 second, 5 second, 6 second and onwards. Okay, just check every second the acceleration remains same. Acceleration does not change at all. So we can say that the body is moving with the constant acceleration. In this case, so what we can write? Body is moving with constant acceleration. Constant acceleration. Constant acceleration means whatever change in velocity, that velocity changes in equal amount. Change in velocity in equal amount at equal interval of time. हर सेकेंड में जो चेंज हो रही है, जैसे अभी मान लो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर पर सेकेंड, तो सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो जो भी डिफरेंस है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हर सेकेंड में वो कांस्टेंट है. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई हियर द इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देना है तो व्हेन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट. ओके, कुछ हाइट से गिरा है, जैसे बॉल थ्रोन फ्रॉम द सडन हाइट, मतलब फ्री फॉल, तो उसको जो एक्सेलरेशन प्राप्त होता है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वी विल स्टडी, वो अगले टॉपिक में है, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में उसको. ओके बच्चों, सो दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, एंड द लाइन पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. नाउ द सेकंड ग्राफ, the graph passing through origin in straight line. So acceleration, here it is, time along x axis, acceleration along y axis. Okay, so there is equals uniform change in acceleration, uniform acceleration, uniform change
in acceleration, uniform change in acceleration. अगर मान लो आपने यहाँ पे अगर इफ यू टेक एरिया अंडर दिस कर्व, ये कर्व के अंदर जो भी एरिया है, राइट, तो एरिया क्या दिखाएगा, एरिया इज इक्वल टू that will be length into breadth, length into breadth, okay, so which will be velocity or acceleration into time, and acceleration to time क्या है, that is the velocity, so you get the expression for velocity, you get the expression for velocity. जैसे हमने velocity time graph में लिया था, velocity time graph में जो एरिया था, एरिया बाउंडेड by the curve, that gives the information about displacement. Similarly here अगर यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय दिस एक्सीलरेशन टाइम कर्व अगर लिया तो यू विल गेट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, ओके, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ओके, सीईटी पर्पस के लिए, नॉलेज के लिए रखो। इसके बेस पे कोई बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले, जस्ट मे बी आस्क दे में आस्क फॉर सीईटी, ओके, सीईटी के लिए थोड़ा अपने को कंसेप्ट चाहिए, इसलिए ये सब कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है, ओके, वी शुड नॉट बाउंड ओनली द टेक्स्ट बुक, बिकॉज टेक्स्ट बुक में काफ़ी कंसाइज दिया है, पूरा नॉलेज उसमें नहीं दिया है, तो वी शुड हैव बेटर नॉलेज। तीसरा ग्राफ आएगा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का, सो एक्सीलरेशन अलोंग दिस, नीचे आएगा नेगेटिव, ऊपर आएगा पॉजिटिव, बिकॉज एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, और वेक्टर हैज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ओके, सो यहाँ पे जो भी दिस रीजन इज 1 2 and 3, okay, so if you take the area bounded by this, okay, यहाँ पे जो motion है, that motion is variable acceleration. What conclusion we can draw from this graph? The body is moving with variable acceleration. Body is moving with variable acceleration. Variable acceleration, okay, simply that much only. Variable acceleration मतलब जो velocity change हो रही है अलग अलग हो रही है, okay, so यहाँ पे delta v is equal to the area, okay, area of 1, अभी ये नीचे आ रहा है तो माइनस होगा, माइनस एरिया ऑफ 2 दिस कर्व पार्ट प्लस एरिया ऑफ 3, राइट, सो आप बोलोगे कि ये माइनस प्लस के लिए बराबर है, ये ऊपर है पॉजिटिव, एज पर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो भी ऊपर का पार्ट होता है एक एक्सिस के ऊपर का वी यूज्ड टू टेक पॉजिटिव एंड उसके नीचे वाला जो नेगेटिव होता है, तो ये पोर्शन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और सबका जो एडिशन होगा दैट यू विल गेट अ चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी, ओके, दैट इज व्हाट द conclusion from the graph, okay, so just take a screenshot. Okay, let's start the equation of motion for the uniform acceleration. Equation of motion. Equations of motion for uniform acceleration. Okay. Actually, these are called as kinematical equation. Kinematic मतलब straight line के लिए. When the body is moving in a rectilinear path, okay, at that time, what if the body is moving the acceleration, uniform acceleration, right? So that time we can have these three equations. These equations were derived by Sir Isaac Newton. Okay, बहुत famous equation है. And on this equation only we are able to send a rocket in the space. Okay, क्योंकि rocket का जो जाने का time है, आने का time है, reaching time है. So how can we calculate? Even हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में जब बैट्समैन या बॉलर जब भी बॉलिंग करता है तो बॉलर का जो स्पीड स्क्रीन पे दिखता है, हाउ दे आर कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग दिस ओनली काइनेमेटिक इक्वेशन, राइट। उसके बाद जब बैट्समैन को स्ट्राइक करता है, जब सिक्सर लगाता है, व्हेन ही स्ट्राइक अ सिक्सर,
और सिक्सर वो कितने डिस्टेंस पे चला गया, कभी बाउंड्री के बाहर जाता है, कभी बाउंड्री के अंदर जाता है। तो बाउंड्री के स्टेडियम के अंदर अगर रहा तो आता है 80 मीटर 100 मीटर ऐसा कुछ आता है, ओके। और बाउंड्री का बाहर गया तो 102 मीटर ऐसा, मतलब डिस्टेंस बराबर। तो क्या ऐसे टेप लगा के मेजर करते हैं क्या? नहीं। सो तो व्हाट दे आर टेकिंग, दे आर कंसीडरिंग द टाइम, कितना टाइम में वो वहाँ पे उस साइड टच हुआ है, एंड उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंड? सो दीज 3 काइनेमेटिक इक्वेशन व्हिच वी आर गोइंग टू डिराइव आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो, डेली लाइफ आल्सो। न्यूटन ने हमको बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी है, राइट। सो बच्चों अभी और ये जो इक्वेशन है इसकी कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। We know that what mean by uniform acceleration? When the body changes its velocity in every equal interval of time. हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इक्वल होगी। We call that motion is uniform accelerated motion. Are you getting my point? Okay. So let us start the equation. तो पहला इक्वेशन आएगा, पहले मैं यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ अगर चाहिए तो। द फर्स्ट इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू डिराइव दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड आएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो सबसे पहले सबका हम जरा सिंबल्स और रीजनल मीनिंग ले लेते हैं। यहाँ पे v जो है, v इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे u है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, देन स्मॉल a जो है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देन s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एंड स्मॉल t इज इक्वल टू टाइम टेकन और टाइम रिक्वायर्ड। ओके, जो भी टाइम लगा उसको होगा गया टाइम, यहाँ पे टाइम है। तो ये सब क्वांटिटी है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट वी कॉल दैट। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसके बेस पे तो ये सब गिवन में लिखना है आपको कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, राइट। तो ये सब अगर इफ यू नो ऑल दिस टर्मिनोलॉजी देन यू आर इजी टू solve the numerical. Physics is very interesting subject, okay, to study. बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो यू विल गेट अ मोर इंटरेस्ट। ओके, तो इसका पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। टेक द वेलोसिटी along y axis and time along x axis, because time is independent variable, velocity is डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ पे बॉडी जो है, दैट बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। ओके, जैसे कि इफ आई थ्रो द बॉडी अप, ऊपर जा रहा हूँ तो मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसको दिया, आई गिवन द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टू दिस बॉडी सो दैट इट कैन मूव अप, राइट। और वो वर्टिकली स्ट्रेट जा रहा है, मतलब इट कैन बी द रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। सो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, इवन द बॉडी मूविंग अप एंड डाउन और हॉरिजॉन्टली आल्सो, हॉरिजॉन्टली जा रही the car moving on the straight road with the uniform acceleration, then we can apply these equations. Okay, so let's start. Initial कुछ velocity लेंगे यहाँ पे, तो initial velocity will be like this. This is what the initial velocity. इसको नाम देंगे हम starting का, यहाँ पे O देंगे point, labeling जरा properly. This will be A, this will be B. Okay, just draw the perpendicular from B on this and just draw this, connect this. So this point will be C, this point will be C, this point will be the D. Okay, तो ये जो है यहाँ पे initial velocity u रहेगा, which we call this is the initial velocity u, पूरा ये u आएगा। and ये जो होगा final velocity that is v. Okay, so no any confusion है। अभी हमको equation derive करना है। तो जब भी आप ये इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपने पढ़ा होगा, राइट। स्टेट बोर्ड 11th में ये इसके दो मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। लेकिन इंटीग्रेशन मेथड आपके नए सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट इंटीग्रेशन मेथड। सो व्हाट एवर द मेथड दे आर आस्क्ड, ग्राफिकल मेथड से हमको इक्वेशन डिराइव करना है, राइट, दिस इक्वेशंस।
बाकी अदर बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में इंटीग्रेशन मेथड भी है, जरूरी नहीं है. वी जस्ट हैव टू derive the expression, that's all. Okay, so don't not to worry. Let's go in simple way, right? अभी देखो यहाँ पे the body, अभी कैसे start करना है? We have to start like this. Consider the body moving with initial velocity small u. Just मैं short form लेता हूँ, try to understand. So initial velocity small u, okay, and in time small t, it acquires velocity small v, u and v. Okay, v1 v2 भी ले सकते हैं आप, u भी ले सकते हैं. सिंबल्स आपकी मर्जी पे है, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई करना जरूरी है, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट करेगा, राइट? अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही तो मतलब देयर विल बी चेंज इन एक्सेलरेशन. ओके, विथ uniformly accelerated. Okay, uniform acceleration small a, right? Time आ गया, acceleration आ गया, right? And covers distance small s. यहाँ पे डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड अगर लिया तो डिस्टेंस, अगर इसमें वेक्टर फॉर्म में लिया तो डिस्प्लेसमेंट आएगा. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? So acceleration of the body, acceleration of a body small a is equal to change in velocity. Okay, अभी देखो यहाँ पे चेंज है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे एट पॉइंट ए, इट गोज ऑन चेंजिंग. और ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विच इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. ओके, तो डेफिनेटली दिस इंडिकेट, हमने पढ़ा है जब ग्राफ अपने स्टडी किया, उसमें ये जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट करता है? द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्मॉल ए. ओके, तो यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी द स्लोप. ये मान लें एंगल मैंने थीटा लिया, राइट? तो यहाँ पे जो भी स्लोप आएगा tan of theta तो इज इक्वल टू दिस अपोजिट. ओके, दिस विल बी चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज bc. ओके, अपॉन टाइम क्या आएगा? ac, दैट इज ac, which will be, लेकिन bc क्या है यहाँ पे? bc इज इक्वल टू bd माइनस cd. ओके, bc इज इक्वल टू bd माइनस cd अपॉन, ओके, टाइम क्या आएगा? ac. बराबर, यहाँ पे क्या है? BC इज इक्वल टू दिस BD, ओके, माइनस CD, मतलब यू विल गेट अ BC, राइट? तो लेकिन BD क्या है? BD इज V माइनस CD क्या है? CD मतलब दिस पार्ट, एंड दिस इज पैरेलल टू दिस. ओके, दिस इज पैरेलल टू दिस, सो इट इज V माइनस U अपॉन AC क्या है? AC, दिस AC इज इक्वल टू OD. AC इज इक्वल टू OD, दैट इज टाइम स्मॉल t. ओके, and change in velocity with respect to time, ये क्या है? change in velocity upon time, that is acceleration. This is acceleration. Okay, so here we can write a into t is equal to v minus u. So v is equal to u plus ad. So this is the first kinematical equation. This is first kinematical equation which was derived by Sir Isaac Newton. Okay, now please take a screenshot. अभी सभी टर्मिनोलॉजी की हमको अभी इंट्रोडक्शन हो गया है, तो मैं ये पार्ट रब कर देता हूँ, बिकॉज आई हैव नीड अ स्पेस टू राइट. डायग्राम तो मुझे लगने वाला है, डायग्राम आई नीड टू एक्सप्लेन. तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन. नाउ लेट अस डिराइव द सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं. जो सेकंड इक्वेशन जो है दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का. ओके, जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का. हमने को बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो व्हाट वी हैव टू टेक? वी हैव टू टेक द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस फिगर. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट is equal to area
एनक्लोज बाय, अभी देखो यहाँ पे जो फिगर है दैट इज द ट्रेपेजियम, इसको क्या होते हैं ट्रेपेजियम, देखो ओ ए बी डी, ओके, एनक्लोज बाय फिगर ओ ए बी डी, इसको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख दो एनक्लोज बाय ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ट्रेपेजियम, okay. So now here what is the formula for area of trapezium, right? या फिर यहाँ पे ट्रायंगल आता है और रेक्टेंगल आता है, वो भी कर सकते हैं आप। It can be written as area of triangle, area of rectangle plus rectangle क्या है OACD, rectangle OACD plus area of triangle ACB, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, दिस इज लेंथ, सॉरी दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, ओके, और ब्रेड्थ इनटू लेंथ डजंट मैटर। तो यू OA इनटू OD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। अभी ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बेस क्या है, बेस इज AC मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है BC इज द हाइट, ओके। जस्ट ज्योमेट्री और मैथ्स यहाँ पे यूज करना है, नथिंग एल्स, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ओके। तो इक्वल टू, अभी देखो OA क्या है, OA इज इनिशियल वेलोसिटी U इनटू OD क्या है टाइम स्मॉल t प्लस 1/2 इनटू AC क्या है यहाँ पे, AC इज आल्सो टाइम, लेकिन हम पहले BC लेंगे। BC क्या है, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, ओके, इनटू वापस मैं EC लेता हूँ, उसको बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन दिस इज डिस्प्लेसमेंट S, ओके। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 इनटू ब्रैकेट। अभी देखो बच्चों BD क्या है, BD इज फाइनल वेलोसिटी, ओके, एंड CD क्या है, CD is the which is parallel, CD parallel to OA which is equal to initial velocity. So we can write V minus U into AC क्या है, AC is time, बराबर। Let it give equation number 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे। अभी हमारा तो पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन के पहले और एक इक्वेशन आता है V minus U is equal to AT। तो फ्रॉम दिस हम लिख सकते हैं, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write, हम क्या लिख सकते हैं, ओके। इक्वेशन में वापस लिखता हूँ, V is equal to U plus AT, so V minus U is equal to AT, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, राइट। तो substituting the value of V minus U in equation 2, let us see what we get. So putting the value of 3 in equation 2 we get, क्या मिलेगा हमको, अगर equation 3 की value if we substitute in this equation 2 we will get expression for displacement, and that S is equal to UT plus 1/2 into, देखो V minus U can be taken as A into T, AT into T, okay. So S is equal to UT plus half AT square, समझ में आया। तो दिस इज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओके, व्हेन द फॉर द रेक्टिलिनियर मोशन। तो आई एम राइटिंग दैट इक्वेशन अगेन हियर। सो S is equal to UT plus half AT square, इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो इक्वेशन 4 क्या इंडिकेट करता है, इक्वेशन 4 इज सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। इक्वेशन 4 represent second kinematical equation, okay. Now the third equation, जो third equation है, that can be derived, okay. Third equation is, now either acceleration is constant, okay, so हमको निकालना भी एवरेज वेलोसिटी,
Okay, average velocity we have to calculate, and again we have to use the same expression displacement here. Okay, so here the body will have the average velocity हम कैसे निकालते हैं, फाइनल प्लस इनिशियल, मतलब दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2. ओके, तो u प्लस v अपॉन 2 कैन बी टेकन एज एवरेज वेलोसिटी, राइट. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, लेट मी राइट दिस, displacement is equal to average velocity multiplied by time. ओके, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम. इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 5 देंगे. अभी जो हमारा पहला इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा रिकॉल कर दें. The first equation was v is equal to u plus at, which can be written as v minus u is equal to at, and small t is equal to v minus u upon a. Right? तो ये जो small t के वैल्यू है, from the first equation 1 we can substitute value of t in the equation 5. Okay? So from equation 1 we get small t is equal to p minus u upon a. Putting value of 6 in equation 5, putting value of 6 in equation 5, we get okay. तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बच्चों, s is equal to u plus v upon 2 multiplied by small t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अभी, that is v minus u upon small a. ओके, तो यहाँ पे ये u plus v और v plus u कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, तो एक एडिशन है, एक प्लस है और एक माइनस है. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b a minus b. तो a plus b a minus b, how can we write, a square minus b square. So by using this identity from the algebra, okay, so we are able to write this expression. I'm writing here. So we can write s is equal to v square minus u square upon twice a. What is twice a here? A is acceleration. Okay, अभी इसको इधर लेके जाते हैं लेफ्ट साइड में. So this can be written as v square minus u square equal to 2as, or v square is equal to u square plus twice as. So this is the third kinematic equation, equation number 7. Equation number 7 represent third kinematic equation. Equation 7 represent third kinematical equation. All these three equations are very very important. Okay, बहुत important है. अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है. नाउ अभी मैं तीनों इक्वेशन वापस वन बाय वन लिखता हूँ. v is equal to u plus at. जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व फिजिक्स के सॉल्व करने, तो साइमल्टेनियसली पेंसिल से राइट साइड में आप जब सॉल्व करोगे तो तीनों फॉर्मूला लिख लेने का. एक मत लिखो, तीनों लिखो. ओके, थोड़ा टाइम जाएगा लिखने में, बट डजंट मैटर. तीनों फॉर्मूला पेंसिल से राइट साइड में वो आंसर शीट में लिख देने का, एंड सो दैट यू कैन रेफर की विच इक्वेशन कैन बी यूज. ओके, v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकंड वाला आएगा डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन दो अलग अलग वे से भी लिख सकते हैं. कैन बी रिटन लाइक दिस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ट्वाइस as. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as.
right? Now the students find little bit difficult, they confuse while solving numerical based on this कि कैसे सॉल्व किया जाए, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, उनको बड़ी एक समस्या उसके दिमाग में रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बहुत इजी है। देखो बेटे यहाँ पे अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जब इनिशियल वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन गिवन, टाइम गिवन, ओके, या फिर इसमें से फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट, एक्सेलरेशन टाइम दिया है, तो आप मतलब चारों में से कोई भी तीन क्वांटिटी अगर दिया है, राइट, तो यू कैन फाइंड द फोर्थ क्वांटिटी। वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है। अगर मान लो न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है और आपको फाइनल वेलोसिटी निकलते आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया है, ओके, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, डिस्प्लेसमेंट दिया है बट फाइनल वेलोसिटी not given, at that time we can use a second kinematical equation in which s is equal to ut plus half at square, because acceleration given, time is given, right? ये थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन में टाइम फैक्टर नहीं है, टाइम टर्म नहीं है, ओके, ओनली द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, नो टाइम इज मेंशन, इट मींस एट दैट टाइम यू कैन यूज ओनली द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, राइट? समटाइम्स क्या होता है, दो तीन मल्टीपल दे आस्क टू फाइंड, राइट, ये टाइम भी निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तब क्या करने का, देन यू हैव टू यूज मोर देन वन काइनेमेटिकल इक्वेशन, एक से ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा, तब यू कैन, मान लो ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम ही दिया नहीं और डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं, हो सकता है, राइट, बट ऐसा हो सकता है कि फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है और बॉडी का एक्सेलरेशन दिया है, राइट, तो उस केस में क्या हम सेकंड, इसका पहला यूज करके, पहले इक्वेशन यूज करके हम टाइम निकालेंगे, and that time can be substituted in the second equation so that we can find the displacement. So simple, कुछ डरने की बात नहीं, कुछ स्केयर होने की जरूरत नहीं। बच्चों को स्केयर लगता है फिजिक्स, अरे बाप रे टफ लगता है, नो, नथिंग एट ऑल, बहुत इजी है। एंड आई एम गिविंग अ प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, यू विल फाइंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड माय सब्जेक्ट, ज़्यादा डाउट्स नहीं होंगे, ओके? आप वीडियो एक दो बार अच्छी तरह उसको रिकॉल करो, उसको रिपीट करो एंड देखो, तो सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके? क्योंकि मैं काफ़ी इंफॉर्मेशन बुक के बाहर भी देता हूँ, तो यू विल फाइंड वेरी इजी, ओके? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन ऑल दिस इक्वेशन। Okay, just we have discussed about, we have derived a kinematical equation for rectilinear motion, okay, or motion of a body along the straight line. That time what equation to be used? तो वो है kinematical equation. तो इसका और एक एग्जांपल है kinetic equation यूज करने के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, that is the free fall. Okay, free fall क्या होता है? Free fall is very simple when the body is released from certain height. Okay, अभी देखो यहाँ पे let me have, नीचे जाके मुझे कैच करना पड़ेगा, okay? Suppose if I release this object and coming down, why it doesn't go up? Some forces acting on this body, कुछ force act हो रहा है, and that force we call it gravitational force, which was exerted by Earth on this object, and that gravitational force always acts vertically downwards toward the center of the Earth, okay? जैसा कि देखो यहाँ पे, this is the Earth. This is the radius r, okay? Then if I take a ball here, कोई भी ball ले लो, if I am taking a ball or body, when the body release from certain height, so this will be the h, displacement जो होगा, displacement will be h here. Initially body release 0 and that body goes down, okay, with the help of gravitational force due to gravity, and that's why this is called as the free fall. Free fall मतलब when the body is moving, थोड़ा सा उसको डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखना है
तो आप लिख सकते हैं, राइट। सो वी कैन राइट इन द टेक्निकल फॉर्म में लिखना है तो फ्री फॉल को, फ्री फॉल इज द वर्टिकल डाउनवर्ड, फ्री फॉल is the vertical downward motion of a body, near the earth surface, under the influence of earth gravity. लेकिन यहाँ पे कुछ उसको ये भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस, हवा भी उसको अपोज कर सकती है, या जो बायनेंसी ऑफ एयर है वो भी अपोज कर सकती है, लेकिन वो यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दैट निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द जो भी है जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन वो निग्लिजिबल रहेगा, जो भी इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस और buoyancy of air. ये buoyancy force आपने प्रेशर में पढ़ा होगा 9th 10th में क्लास में, the pressure exerted, the force exerted by liquid when it floats, जब भी कोई भी बॉडी फ्लोट होती है, राइट, तो the liquid exert upward force, उसको हम buoyant force बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो लिक्विड नहीं है, लेकिन हमने ऐसे छोड़ दिया ऑब्जेक्ट को, लेकिन हवा तो है ना, एयर मॉलिक्यूल्स, तो एयर क्या करेगी, उसको भी अपोज करेगी ना। इसका अगर आपको प्रैक्टिकल अगर स्टडी करना है तो एक बलून ले लो, बलून को ऐसे ऊपर से छोड़ दो, धीरे धीरे आएगा वो, या फिर अपना सादा पेपर ले लो, ये पेपर ले लो और छोड़ दो, राइट। तो जैसे ये पेपर का छोड़ दिया, राइट, तो पत्थर के जैसा नीचे डायरेक्ट नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा। क्यों आएगा धीरे धीरे? बिकॉज ऑफ बायनेंसी फोर्स, बिकॉज ऑफ बायनेंसी ऑफ एयर, राइट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, यहाँ पे एयर भी फ्लूइड का काम करती है, एयर आल्सो फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज बायनेंसी ऑफ एयर, ओके, और एयर रेजिस्टेंस। तो ये सब हम इग्नोर करने वाले हैं, डायरेक्ट जो बॉडी है विच विल फॉल डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो फ्री फॉल कभी कभी ये एक मार्क लेके डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के जो हमारे पेपर हो गए कॉलेज के पेपर, उसमें एक मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकती है। डिफाइन फ्री फॉल, तो फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल इज द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी नियर द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी। ग्रेविटी यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करता है। आपको सूर्य पता होगी न्यूटन की, राइट, जब 1673 में 1673 में 74-73 में जब वहाँ पे प्लेग का पैंडेमिक आया था, जब भी अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, राइट, कोविड पैंडेमिक चल रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड धूम मचा दी कोविड ने, राइट। वैसे उस टाइम पे भी इंग्लैंड में प्लेग की पैंडेमिक चालू थी, महामारी चालू थी, तो उस टाइम पे सबको छुट्टी दे दी, जाओ घर पे जाओ। तो घर पे आया न्यूटन, आया तो एक दिन ऐसे ही वो गार्डन में बैठा था, बैठे बैठे, और नकली वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था। बाद में ऐसे कुछ सोच रहा था, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता था न्यूटन, वो कभी ऐसा खाली बैठने नहीं आ रहा था, बैठा। और एक दिन अचानक जो एप्पल है वो नीचे गिरा, देन ही वाज सरप्राइज, ये एप्पल नीचे क्यों आया, कितने स्पीड से आया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसके दिमाग में हमेशा ऐसे सवाल आने लगे। फिर उसने वो जो अपना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो उसने डिराइव किया, वो उसको बनाया, फिर उसके हिसाब से ये इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म हुआ और उसको सोर्स हुआ, मतलब, राइट। तो दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी अबाउट न्यूटन, ओके। तो ये हुआ फ्री फॉल। हियर द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। अभी यहाँ पे दो केसेस है, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग डाउन, वर्टिकली डाउन एंड वर्टिकली अप। अभी देखो यहाँ पे जब मैं व्हेन आई थ्रो दिस कैप ऑफ द मार्कर अप, राइट, तो इट गोज अप एंड stop at some height, okay, उसकी वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाती है। and when we release the object from certain height, तो क्या होता है? when I release this,
तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे जब वो मेरा हाथ पे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, राइट। तो अभी यहाँ पे कुछ केसेस है, डिफरेंट केसेस। तो मोशन अंडर ग्रेविटी करके यहाँ पे एक केस है, वो ले लेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी रीच करते हैं, इट हैज इनिशियल वेलोसिटी बी 0 एंड एट अ टाइम t टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, हर सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बट द चेंज इन वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, that's why you will get a uniform acceleration, right? We call it acceleration due to gravitational force, due to gravity, and that's why named as acceleration due to gravity. जो हम लेते हैं, ये ओवरऑल जो वैल्यू है ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, राइट। एंड बट फॉर इजी ऑफ कैलकुलेशन वी यूज टू टेक जी का वैल्यू हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो न्यूमेरिकल में अगर आपको 10 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है, सो यू आर सपोज टू अज्यूम g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसका डिटेल में पढ़ाई हम करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। आगे का जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के जो केसेस है वो देख लेते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन body is moving vertically downwards, ओके। तो देखो बेटो यहाँ पे अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, राइट, तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, यू विल बी 0, राइट। एंड अर्थ वो बॉडी को नीचे खींच रही टूवर्ड इट्स सेंटर के तरफ खींच रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे आ रही बॉडी। ओके, मतलब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट आर द एक्सेलरेशन इट विल एक्वायर, ओके, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एंड इट इज डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट्स इट इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। तब क्या लेना है, u 0 होगा and acceleration will be plus g, which is equal to plus 9.8 meter per second square. This is very important. When the body released from certain height in the downward direction, the acceleration acquired by the body in the direction of gravitational force to be considered as positive. Acceleration क्या लेना है, positive, क्योंकि इसी पे पूरा डिपेंड है, पॉजिटिव नेगेटिव पे ही पूरे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों के जो मार्क्स जाते हैं सीईटी में, जेईई में, एडवांस में, राइट, सो दे जस्ट इग्नोर दिस साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है कि वेदर द एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी टू बी टेकन एज नेगेटिव और पॉजिटिव। सो एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी द h, ओके, नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा। देन व्हाट इज द लेफ्ट, फाइनल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इट विल बी ग्रेटर देन 0। सो व्हाट वी कैन राइट, सो पहला इक्वेशन दे, तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, सो दिस कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू 0 प्लस स्मॉल g इनटू t, तो v इज इक्वल टू gt, ये पहला इक्वेशन है, ओके। देन let me rub this, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए। व्हाट इज दैट सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, h, s इज रिप्लेस बाय h इज इक्वल टू 0 इंटू t प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ओके। तो 2h इज इक्वल टू gt स्क्वायर, यहाँ पे t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g, देन t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g,
सो दिस इज द टाइम टेकन टू रीच द, कहाँ पे कितना टाइम लग रहा है ग्राउंड पे रीच होने के लिए. ओके, तो वो टाइम हम निकाल सकते हैं अगर हाइट पता हो तो. इफ यू नो द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम विच इट इज रिलीज, कितना हाइट से ऊपर से फेंका है, अगर वो हाइट पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है 9.8, तो हम इजीली कितने टाइम वो नीचे ग्राउंड पे टच होगा, पहुंचेगा, तो उसका हम टाइम निकाल सकते हैं. अभी थर्ड इक्वेशन हम डिराइव करने वाले, थर्ड लेने वाले. थर्ड इक्वेशन इज v square is equal to u square plus twice as. ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो v square is equal to 0 plus twice g into h, twice g into h. So this can be written as v is equal to under root of 2gh. ये इक्वेशन बनेगा to get a final velocity. अगर फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, अगर हाइट पता है तो, राइट, वी कैन गेट अ फाइनल वेलोसिटी, वी नो द हाइट. और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2gh is equal to v square, so h is equal to v square upon 2g. यहाँ पे h मैक्स हम ले सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट. ओके, कितने मैक्सिमम हाइट से हम उसको फेंक सकते हैं, कितना है वो भी निकाल सकते हैं, v square upon 2g. तो ये सब अलग अलग फॉर्मूले, देखो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर हाइट और जी दिया है, यहाँ पे हाइट और जी दिया है, टाइम निकाल सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना है. और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं अगर टाइम दिया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है. सो दीज आर दी केसेस फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, अभी हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, वर्टिकली अप, ऊपर जब फेंकेंगे, राइट, व्हेन वी थ्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, तो तब क्या केसेस लेने वो देखना है, तब क्या केसेस लेने हमको देखना पड़ेगा, राइट. तो अभी उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे. So when the body is thrown vertically upward, when the body thrown vertically upward, बराबर. अभी देखो when we throw the body vertically upward, अभी मैंने बॉडी यहाँ पे रखी, डज इट मूव, अपने आप जा रही है ऊपर? नहीं जाएगी. क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी यहाँ पे बॉडी, राइट. व्हेन आई गिव द सम जर्क, ओके, तो यहाँ पे मुझे हाथ को फोर्स लगाना पड़ेगा, इट गोज अप. ओके, मतलब आई हैव टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी, राइट. एंड व्हेन आई गिव द इनिशियल वेलोसिटी, राइट, एंड बिकॉज ऑफ द, अभी वो क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स उसको जाने नहीं दे रहा है ऊपर, वो अपोज कर रहा है, राइट. तो क्या हो, जितना हमने वेलोसिटी दिया है, इतना फोर्स लगा है यहाँ पे, वो उतना ऊपर जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पे, द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 और इनिशियल वेलोसिटी भी नॉट 0. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी u नॉट इक्वल टू 0. ये केस में हमने क्या लिया था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, व्हेन द बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, तब हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया, वो हमेशा एज्यूम करना है, कंसीडर करना है. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी जाएगी, तो क्या दिखा जाएगा, द बॉडी व्हिच हैज एट रेस्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, अभी रेस्ट पे, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एज्यूम करने का, कंसीडर करके चलने का, राइट. देन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0. ओके, अभी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो, सी व्हेन वी थ्रो दिस ऑब्जेक्ट अप, ऊपर फेंक रहा हूँ, राइट, तो दिस बॉडी पजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, राइट, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन पे भी एक्सेलरेशन होगा, और जो डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन पे भी एक्सेलरेशन होगा, राइट. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ओके, वो ऊपर जा रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, नीचे जा रहा है, राइट. तो यहाँ पे दोनों अपोजिट है, बॉडी मूविंग अप एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड, तो दोनों अपोजिट है, राइट. इसलिए यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू -g. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस.
हमेशा याद रखना, जब भी बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द वैल्यू ऑफ द साइन फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी टेकन एज नेगेटिव। ये नेगेटिव के साइन की वजह से पूरा न्यूमेरिकल 4 मार्क का रॉन्ग हो जाता है एडवांस में, जेई में, राइट, सीईटी में, उसके वजह से पूरे मार्क्स हमने चले जाते हैं। तो प्लीज दी टेक दिस साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना, आपको बहुत ख्याल रखना है। देन s इज इक्वल टू यहाँ पे ऊपर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे भी h आएगा। तो वापस इक्वेशन लेते हैं एक एक। v इज इक्वल टू u प्लस ई टी, 0 इज इक्वल टू u प्लस माइनस जी इंटू टी, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी, देन u इज इक्वल टू जी टी, देन स्मॉल t इज इक्वल टू u अपॉन जी। टाइम निकालना है, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, h इज इक्वल हाइट निकालना है, तो h इज इक्वल टू कितना हाइट ऊपर जाएगा बॉडी, राइट, h इज इक्वल टू यहाँ पे u t, यहाँ पे मैं माइनस लूंगा, एक्सप्रेशन माइनस लूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, this can be written, अभी देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, यूनिट गो अप, 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू h, s इज इक्वल टू h, डिस्प्लेसमेंट जो भी हो वो हाइट का काम करेगा, राइट, सो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। ओके बच्चों, तो अभी ये मैं माइनस तक इधर लेके आता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी एच, और दिस इंप्लाइज हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहाँ पे व्हेन द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, कितने हाइट मैक्सिमम जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी आपने कितना दिया, कितना जर्क दिया वो बॉडी को, उस पे डिपेंड करेगा, अपॉन 2g। यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन में व्हेन द वर्टिकली डाउनवर्ड है v स्क्वायर अपॉन 2g, h का वैल्यू, ओके, यहाँ पे u लेना है, सो दीज आर दी एक्सप्रेशंस फॉर दिस, और कुछ नहीं, बस हो गया, इतना ही हम डिराइव कर सकते हैं। चलो अभी ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इनिशियल कंडीशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब जी का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। Okay, I have a very interesting question for all of you. Okay, suppose if I throw the body up, बड़ा सा मैंने ऊपर फेंका, okay, ऊपर फेंका, then when it goes up certain height, it acquired zero velocity, बराबर, तो velocity 0 है, what is the acceleration at this point? All will answer, अगर velocity 0 है तो acceleration भी 0 होना चाहिए, but no, when the body reaches to maximum height, it has acceleration for the moment, पहले stop, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, then it go down, okay, तो यहाँ का जो acceleration है, that is the acceleration due to gravity, g, in that downward direction, उसका जो direction है acceleration का, वो नीचे के साइड पे हमेशा होता है। बहुत बार बच्चों को एक सवाल अगर पूछा, when the body thrown vertically up, what is the acceleration at the highest point? What is the velocity at the highest point? So velocity will be 0, but the acceleration, no. It has acceleration due to gravity, which acts vertically downward. Is that clear? Okay. अभी जो टेक्स्ट बुक में एक सम दिया है, वो सम हम देख लेते हैं। That is the page number 35 में दिया है,
पेज नंबर 30 में दिया है जो डू यू नो वाला एक बॉक्स है, पिंक कलर का बॉक्स, उसमें जो दिया है वो वाला सम हम देखते हैं। ओके, साथ में वो भी देखना है आपको, पीडीएफ फाइल आपके पास होगा, तो जस्ट फोकस ऑन पेज नंबर 35 पीडीएफ फाइल में। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड हैविंग अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द सक्सेसिव सेकंड्स आर इन द रेशियो 1:3 5:7। ओके, मतलब क्या है क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आया होगा तो लेट मी एक्सप्लेन, दो जो नॉट अंडरस्टूड, उसको भी समझ में नहीं आया है उसको मैं ज़रा वापस समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर मान लो ये बॉडी है, ओके, नॉन लिविंग बॉडी, व्हेन दिस बॉडी रिलीज, जब ऊपर से कुछ हाइट से फेंका तो क्या होगा, पहले सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरे सेकंड में अलग डिस्टेंस कवर होगा, तीसरे सेकंड में अलग होगा, क्योंकि हर सेकंड में वेलोसिटी की चेंज हो रही है और बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, हर बार उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। और वो कैसे बढ़ेगा, फर्स्ट सेकंड में 1, सेकंड के बाद 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, और 5 सेकंड में 5 टाइम्स, थर्ड सेकंड में 5 टाइम्स, फोर्थ सेकंड में 7 टाइम्स। दैट इज व्हाट द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा डायग्राम इमेजिन करेंगे तो यू विल फाइंड वेरी इजी। तो मान लो यहाँ पे इनिशियली u इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा, when the time is 0, तब डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो 0, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 0, डिस्टेंस 0 ना, क्योंकि आई एम जस्ट होल्डिंग एट सर्टेन हाइट। ओके, तो यहाँ पे टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अभी 1 सेकंड के बाद यहाँ पे दिस इज फर्स्ट सेकंड, दिस इज 2 सेकंड, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, तो t0 लेंगे, t0 लेंगे, और दिस विल बी t0 सेकंड, this will be 2t0 second, this will be 3t0 second and so on, बढ़ते जाएगा। ओके, तो what are the distance covered, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, यहाँ पे होगा d1, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा d2, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा d3, और d1 and d2 and d3 are in the ratio 1:3:5 and so on, इसे बढ़ते जाएगा। अभी कैलकुलेट करते हैं, चलो पहला केस लेते हैं। एट टाइम t0 is equal to 0, that time initial velocity is 0, distance is 0. Then after time t0, distance covered और displacement covered, डिस्टेंस यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी ut, जो हमारा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या सॉरी ये लेंगे, यस वही लेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आएगा, द डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई 0, तो 0 into t0 प्लस 1/2, यहाँ पे बॉडी इज मूविंग डाउन। ओके, तो बॉडी मूविंग डाउन, तो g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा, gt0 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा 1/2 gt0 स्क्वायर। लेट अस अज्यूम, मैं तो इसको थोड़ा अज्यूम करता हूँ, अज्यूम a is equal to 1/2 times g, a is equal to क्या दिया मैंने 1/2 टाइम्स g, ने एक सिंबल तो रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग t0 टाइम इंटरवल, अभी टाइम इंटरवल लेने का। ओके, टाइम इंटरवल कौन सा लेना है,
t0 और 0 के बीच में, ये इंटरवल दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालना है। तो कितना आएगा फाइनल डिस्टेंस, ओके 1/2, लेकिन हमने ए लिया उसको, दिस विल बी 1/2, दिस इज a टाइम्स t0 स्क्वायर, दिस विल बी a टाइम्स t0 स्क्वायर माइनस इनिशियल 0, so which will be a times t0 square, equation 1 दे दीजिए। So this is the distance covered during the t0 time interval। अभी इस 2t0 टाइम अगर लिया तो 2t0 टाइम distance covered after time 2t0 will be, तो क्या आएगा यहाँ पे what will be there, it is ये यूज आएगा 1/2 into g into 2t0 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्या लिया, दिस इज इक्वल टू कैपिटल A, so this can be written as capital A into 4t0 whole bracket square, okay, sorry 4t0 square, 4 into t0 square, so this can be written as 4 into a t0 square। So now the distance covered इसको ले लेते d1 ले लेते इसको, दिस विल बी d1 डिस्टेंस कवर्ड जो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, तो ये हम d1 ले लेते हैं, d1 इक्वल टू a टाइम्स t0 स्क्वायर, ओके। सो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 2t0 इज इक्वल टू, तो ये सेकंड ये पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है, राइट। सो दैट कैन बी रिटन एज d2 इज इक्वल टू 4a t0 स्क्वायर माइनस a t0 स्क्वायर, जो पहला वाला है वो लेना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस यहाँ पे था और कितना डिस्टेंस यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इंटरवल मतलब क्या होगा, डिफरेंस इन टाइम, ओके, सेकंड और फर्स्ट सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा d2 इज इक्वल टू 4a t0 स्क्वायर माइनस a t0 स्क्वायर, तो विच विल बी, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, a t0 स्क्वायर इनटू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स a t0 स्क्वायर, व्हाट इट, लेकिन व्हाट इज दिस a t0 स्क्वायर, ओके, तो a t0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा d1, सो दैट विल बी, तो d2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स d1, दिस इज व्हाट, ओके। अभी डिस्टेंस कवर्ड in 3t0 सेकेंड, 3t0 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड के बाद, मतलब स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना है, ओके। सो दैट विल बी विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 g 1/2 3t0 स्क्वायर, what happened, so this will be, बट लेकिन इसके बदले हमने क्या लिया है, कैपिटल ही लिया है, कैपिटल A इंटू 9t0 स्क्वायर, यहाँ पे g नहीं है, दिस इज 9, ओके, टेक केयर, so this can be written as 9a t0 स्क्वायर। तो ये आएगा डिस्टेंस कवरिंग 3t0 सेकेंड्स, 3t0 है ना, तो ये सिंबल यहाँ पे थोड़ा t बड़ा है और उसको सफिक्स 0 है, 3t0 सेकेंड। देन द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 3t0, ओके, वो कितना होगा, दैट विल बी, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज डिस्टेंस d3, सो d3 इज इक्वल टू 9
ए टी जीरो स्क्वायर माइनस, ओके माइनस क्या आएगा, उसके पहले वाला कौन सा था, d2 माइनस d2, ओके सो विच विल बी 9a t जीरो स्क्वायर माइनस d2 कितना है, d2 इज समथिंग 3, ओके t नहीं है नॉट t इज समथिंग 4 आया ना अपना यहाँ पे, हाँ ये वाला 4a t जीरो स्क्वायर, 4a t जीरो स्क्वायर, सो यहाँ पे 4a t जीरो स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 5a t जीरो स्क्वायर, दिस इज d3, लेकिन a t जीरो स्क्वायर क्या है, d3 is equal to 5 times d1, and if you go on increasing, जैसे बढ़ाते जाओगे हर सेकंड में, तो you will get the ratio 1:3:5:7, देखो यहाँ पे 3 बार आया, 3 टाइम्स d1 आया, 3 टाइम d1 आया, यहाँ पे 5 टाइम्स d1 आया, यहाँ पे सिंगल टाइम है, तो ये एनसीटी स्क्रू फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। खबर बात I hope you must have understood all this. अगले लेक्चर में we will see the some numerical based on this, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा, राइट, डिफाइन फ्री फॉल एंड ऑल, ओके। तो फ्री फॉल कहता है when the body released from certain height, okay, it is coming down in the influence of earth gravity, which is called a gravitational force, okay, and what are the acceleration acquired by that body, it is acceleration due to gravity, which is whose value is 9.8. जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो वी आर टेकिंग स्मॉल g इक्वल टू पॉजिटिव, व्हेन द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप वी आर टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू नेगेटिव, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। व्हेन द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी नॉट 0, व्हेन द बॉडी रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट फ्रॉम द रेस्ट, सो u इज 0 और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। हमने ग्राफ भी देखा है एंड वी हैव डिराइव्ड द 3 काइनेमेटिक इक्वेशन, ओके। पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये तीनों जो इक्वेशन है आपको बार बार उसको याद करना है, लर्न करना है, ओके। रट लिया तो भी चलेगा लेकिन आपको याद रखना है, ओके। सब जो फॉर्मूले भी जिसके एक बड़े A4 साइज के पेपर में स्केच पेन से, बड़े मार्कर से, बड़े बोल्ड लेटर में लिख लेने का, और आपका जो इसका ब्रश करने का जहाँ पे आईना होगा वहाँ पे ब्रश के सामने दीवार पे लगा देने का, जब भी आप ब्रश करते हो तो उस टाइम पे वो फॉर्मूले याद करने का। या आपकी स्टडी रूम में भी अगर होगा स्पेशल रूम, तो स्पेशल रूम में जो बोर्ड पे आप सॉफ्ट बोर्ड पे आप सब फॉर्मूले फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के सब फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, आते जाते उसको पढ़ने का। तो बार बार आप फॉर्मूले याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, राइट। सो चलो बच्चों, हैव अ गुड डे, नाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, चलो।